welcome again to the complete the next task 3 and also to my YouTube channels. Here we are going to talk about the next task number 3, and in this task we have to talk and mainly talk about dicing stimulator game. First of all, I would like to introduce myself. I am Mohammad Washifulak, an engineering graduate passionate about coding, AI tools, and teaching. Over the previous year, my past years, I have taught many students, both online and offline coachings, simplifying complex topics like Python, mathematics, and AI. My goal is to make learning practical, fun, and accessible for everyone. You know, Today I will guide you through a fun and interactive Python project, the dice rolling simulator. This program mimics rolling a die and generate a random result just like in real life. It's a perfect for beginners to practice coding concepts like loops, user input, and random number generations. And this last in the stars is not just about creating a dice stimulator. It's all about learning a technique Python fundamental in an engaging way. By the end, you will understand how to implement user interactions, generate random outcomes, and write clean reusable code. So are you ready, guys? So let's get start. Okay. So here we first of all we have to create. I have already talked about that we have to create a import 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 a random. Okay, what's a random means? It's a module which include functions and everything, a random choice. Okay, import random, and now we define the functions, and the function name dice rolling stimulate stum stimulator, and close this syntax. And here we pass the message to understand the user what the actual I want to say in this parenthesis. Here we write welcome to the dice stimulator. Okay, now the move towards the next here, and the next message passed through with the help of print functions. What should I write, guys? What should I write? Can you guess it? आप लोग बस ये चीज़ करना है कि आपको मैसेज पहुंचाना है ताकि यूज़र समझ सके कि अंडरस्टैंडेबल हो उसके लिए, ठीक है? तो हियर वी कैन राइट यू कैन roll a standard in a dice, only 6 letters included, 6 words like 1 2 3 4 and 6. And also if a large dice, then you can include a lots of number. You have already know about that. So you can roll a standard 6 sided. Okay, 6 sided die, and see what see. Here you can see, once again, and sorry for that. So let's start our topic right here. We are here. Okay, so we write what you get, what you get.
Here the user can easily understand what I am meaning, what I mean to say to the users. Okay, so let's create a while loop. I mean a loop. Okay, so I choose a while loop, and here is the syntax of while true syntax, and we write here we create a variable. Okay, and assign this what I write here, input a function which is passed through this slash n. Here slash n is escape. It means we can write here, it's just like a escape character. It means you have generate a code through, मतलब ये आपको दिखेगा नहीं, बस अगले लाइन में आ सकता है, इसका मतलब यही होता है. सो दैट्स व्हाई यू राइट टाइप. अब यूज़र को क्या कहना है, टाइप करना है रोल what to roll the dice or quit करना है. or should I quit to exit okay. And close this parenthesis. Now we move towards others. Here we can create another variable name. Should name is be result. Okay, what should I write here? If मतलब अगर यूज़र क्रिएट करता है ट्रू, इट मीन्स आई थिंक यूज़र ने इनपुट, मतलब कि यूज़र, मतलब ये प्रोग्राम ने यूज़र से कहा कि लाइक टाइप रोल, वहाँ पे गलती कर टाइप रोल, उसने बोला रोल टू रोल द डाइस को टू रोल द डाइस और क्विट टू एग्जिट. ओके, एंड हियर अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, कंडीशन अप्लाई करेंगे. नाउ वी अप्लाई द कंडीशंस. कि व्हाट कंडीशंस, मतलब क्या कंडीशन हो सकते हैं, मे बी व्हाट सेट कंडीशन कैन बी. okay, right. So here we can apply the condition, if else condition. if roll equal to, अगर roll आ जाता है, so we write here another terms, another variables name, create a result. and result क्या है, what do you mean, what's the mean of this code. okay, समझाने का प्रयास करता हूँ. random dot rand int, ये क्या करता है, आपको वो रैंडम आपको नंबर क्रिएट करके देगा 1 और 6 के बीच. इसका मतलब ये होता है 1 to 6 में रैंडम नंबर क्रिएट करके आपको देगा. इट्स द मीनिंग ऑफ रिजल्ट. एंड हियर वी राइट हियर प्रिंट फंक्शन. प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट फंक्शन में लिख के उसके अंदर मैं पास करूँगा यू रोल्ड द रिजल्ट. उसने अपना रिजल्ट पा लिया. यू रोल्ड a result. okay, now we write if once things like we forgetted about the if the syntax fails, here we write colon. now हम लोग को इंडेंटेशन भी भूलना नहीं चाहिए. ओके, और थोड़ा अब सही है. डन.
अगर रोल इफ रोल अगर रोल की इक्वल हो जाता, मतलब रोल जो है साइन हो जाता है रोल को, ठीक है, इक्वल होता है, तो मैं क्या करूँगा, एक रैंडम क्रिएट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं कोई भी रैंडम नंबर जो 1 से 6 के बीच में है मैंने उसे असाइन कर दिया। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट कर देता हूँ मैं, इंडेंटेशन ध्यान रखिएगा, प्रिंट कर देता हूँ क्या, व्हाट शुड आई प्रिंट हियर, यू अर्न अ रिजल्ट। इसका मीनिंग ये होता है कि ये स्ट्रिंग, इसके अंदर जो भी नंबर है वो स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, ठीक है, इसका मतलब है। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका काम तो हो गया। अब मैं एलिफ यूज़ करता हूँ। एलिफ के अंदर एक ऑन कंडीशन हो सकता है, अगर रोल ये हो सकता है, अगर रोल इक्वल टू क्या हो, क्विट हो जाए, किसी ने चूज़ किया ये, तो अगर ये चूज़ करता है तो क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा। हियर वी राइट, व्हाट शुड आई राइट हियर, प्रिंट and pass the message to understand the user easily can understand. What should I write, thanks for playing, thanks for playing, and you can pass goodbye. Okay, understand and move next. इफ है तो अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, ब्रेक कर दूँगा, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, अब ब्रेक करना चाहिए। इफ एलिफ का पार्ट यहाँ से क्रिएट ख़त्म होने के बाद वो किस में मूव करेगा, अब जाएगा वो इधर। इफ है तो इफ है तो एल्स, लास्ट क्या है, एल्स। एल्स में मुझे क्या पास करना होगा, प्रिंट। अब यूज़र कुछ अदर चॉइस ना कर देते हैं, उसको समझाने के लिए मुझे पास करना होगा, वी हैव टू पास हियर व्हाट शुड आई, इनवैलिड कैरेक्टर या नंबर, जो भी आप कह सकते हैं, इनवैलिड इनपुट, ओके, वैलिड इनपुट एंड हियर प्लीज़ टाइप, ऐसे कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले यूज़र को समझा चुका हूँ कि आपको रोल ही टाइप करना है, उसको इसको यही टाइप करना होगा, या तो आप अगर नहीं खेलना हो तो आप क्विट कर सकते हैं। ओके, ऐसे उसको समझाना है। एल्स पार्ट क्रिएट होने के बाद आप इस मूव करेंगे, इफ एल्स कंडीशन ख़त्म हो गया, फिर मैं इफ़ नेम जनरेट करूँगा। इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, ये कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है बिना किसी इम्पोर्टेंट के सहायता से, यू नो। तो यार वी राइट हेयर, इक्वल का साइन देंगे हम। इक्वल का साइन देने के बाद मैं इसको कंप्लीट करता हूँ कोड को, मेन और मैंने फंक्शन का नाम क्या दिया था, डाइस रोलिंग स्टिमुलेटर, डाइस रोलिंग स्टिमुलेटर, ये हो गया। लेकिन डन डन डन, ठीक है, रन करना चाहिए। एक सेकंड, यहाँ पे ओ सिट, यहाँ पे डाइस, ये केस, क्योंकि ये फंक्शन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ये जो नेम होता है ना, अगर आप इंग्लिश लेटर लिख रहे हैं तो केस सेंसिटिव, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, उसको ऐसे लगाना पड़ेगा, हाइफन जो नीचे की तरफ होते हैं। अब सही है, आप इसको रन करके देखते हैं, यहाँ से रन करते हैं, लेट्स रन द कोड। ओ शिट, तकलीफ में ये लग रहा है कोड, कहाँ गलती हो रहा है, एरर बता रहा है कहाँ पे, इनवैलिड सिंटेक्स में भी इनट, और एक सेकंड, रोल इक्वल टू रोल है तो क्या होना चाहिए, सिंटेक्स इनवैलिड सिंटेक्स में भी यू मींट या ये इंस्टीट्यूट ऑफ दिस। एक मिनट, यहाँ पे इक्वल अब सही होना चाहिए, और यहाँ पे भी वही दिमाग, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देंगे, इक्वल ऑपरेटर लगाना चाहिए था।
अब हो जाए। ओके, रन हो चुका है हमारा कोड। वेलकम टू द डाइस स्टिमुलेटर। ये क्या लिख रहा हूँ, वर्ड गलत लिख दिया, कोई ना, यहाँ पे आप इसको सही कर सकते हैं। स्टिमुलेटर, ओके, अगेन रन करता हूँ। ओके, वेलकम टू द डाइस स्टिमुलेटर। यू कैन रोल अ स्टैंडर्ड 6-sided डाई एंड सी व्हाट यू गेट। ठीक है, अब पूछ रहा है टाइप करें रोल टू रोल एंड डाइस, रोल द डाइस और क्विट टू एग्जिट। ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हैं, मैं करता हूँ रोल करता हूँ। अगर मैं कुछ अलग, जैसे मैं रोल किया, ठीक है, इंटर करो, तो फिर क्या रहा, रैंडम इज नॉट डिफाइंड। कहाँ दिक्कत हो रही है, नहीं मेरा रैंडम, रैंडम, रैंडम कहाँ गलती, रैंडम किधर लिखा मैंने, 17 डाइस रोलिंग स्टिमुलेटर, रैंडम यार, सिट, रैंडम होना चाहिए। नेक्स्ट फिर से रन करता हूँ, रोल करता हूँ। ठीक है, आपने देखो ये रोल्ड 2, फिर टाइप करा, आप अगेन खेलना चाहते हैं या नहीं, तो मैं कुछ रोल की जगह में कुछ और टाइप करता हूँ, लाइक MD टाइप किया मैंने। देखिए क्या करें, इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ टाइप रोल और क्विट। आपको दोनों में से कोई एक ही ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से मैं रोल कर रहा हूँ, देयर प्रिंट लाइक यू रोल्ड अ 5। फिर अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्विट करता हूँ, मुझे गेम नहीं खेलना है। ठीक है, ये कंप्लीट करना है। सो यार, थैंक यू फॉर